নমস্কাৰ চাই আছে এনি টক্স আৰু মই ভাৰ্গৱ দুৱৰা। এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে কিমানখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দৃষ্টিত এবাৰ বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰত কিমানখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহলৈকে আনকি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী কৰিছে যে এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 400খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব আৰু 400খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব কেন্দ্ৰত। এই দাবী কিমান দূৰ সঁচা হ'ব, কিমানখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শাসকীয় দল বিজেপিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে টাৰ্গেট বান্ধি দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক। ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে 150খনতকৈ এখনো আসন বেছি নাপায় বিজেপিয়ে। পুনৰবাৰ কৈছো, কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য যে এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত খুব বেছি 150খন আসনহে লাভ কৰিব শাসকীয় দল বিজেপিয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি কৈ আছে 400খন পাম বুলি, সেয়া যি কৈ থাকক, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 150খনতকৈ এখনো আসন বেছি নাপায় বিজেপি। এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই বিগ পলিটিকেল নিউজ। 150খনতকৈ এখনো আসন বেছি নাপায় বিজেপিয়ে। মাত্ৰ 150খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকিব বিজেপি। বিজেপিয়ে যি কৈ থাকক, কিন্তু লাভ নাই। 150খন আসনেই লাভ কৰিব বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে যিমানেই দাবী নকৰক কিয় 150খনতকৈ এখনো আসন বেছি নাপায় বিজেপিয়ে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচন দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু দেশৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ যুঁজ, আৰু এই যুঁজৰ এফালে আছে দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে ওলাই অহা ইণ্ডিয়া এলায়েন্স, আনফালে আছে দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান শেষ কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা RSS বিজেপি। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক, আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে খুব বেছি 150খন আসন লাভ কৰিব, তাতকৈ এখনো আসন বেছি নাপায় বিজেপিয়ে। এইবাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ যুঁজ, আৰু এই যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ জনতাই। এইবাৰ দেশৰ জনতাই বৰ্জন কৰিছে বিজেপিক। দেশৰ জনতাৰ আস্থা বিশ্বাস এতিয়া কেৱল মাত্ৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক আস্থাত লৈ জনতা ওলাই আহিছে, আৰু এইবাৰ ব্যাপক জনসমৰ্থন লাভ কৰিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে। এনেধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে, আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে, ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছে, এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 150খনতকৈ অধিক আসন লাভ নকৰে, 150খন আসনতে সীমাবদ্ধ থাকিব শাসকীয় দল বিজেপি। আপুনি কি কয় যে সঁচাকৈয়ে 150খন আসনে পাব নেকি বিজেপি? কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব, বা আপোনাৰ দৃষ্টিত কিমানখন আসন পাব বিজেপিয়ে? কমেন্ট বক্সত জনাওক আপোনাৰ মতামত। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। কি কৈছে राहुल गांधी? देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को असली बात नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने, कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। अब नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था,
जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहां पे लेना देना नहीं है, मैं यहां का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे हैं कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे हैं कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। अब नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था, जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहां पे लेना देना नहीं है, मैं यहां का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। जो यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं, वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो एक ही सिस्टम है। अब यहां पे फर्क है कि यहां पे उनको बैठा रखा है और उनका जो है प्रफुल्ल पटेल जी हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी जितना कंट्रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है मैं बताता हूं आपको, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, सारे के सारे जो संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकली, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकला। सबसे पहले सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलेगा, उसके बाद लोकतंत्र, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकले। कॉन्स्टिट्यूशन नींव थी, बीज था, और उसमें से ये चीजें निकली। अब ये लोग चाहते हैं कि इसको नष्ट किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनको खत्म किया जाए, और आरएसएस और बीजेपी के राजाओं को
देश के राजा बना दिया जाए। अब देखिए, आप मैं आपको बताता हूं, देखो, आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो। हिंदुस्तान की जो शिक्षा का सिस्टम है उसमें आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो। सारे के सारे आरएसएस के आदमी हैं। उनको शिक्षा के बारे में कुछ नहीं मालूम। कर सारों को यूनिवर्सिटीज में सारे आरएसएस के राजा बैठा दिए। तो यह काम किया जा रहा है और इससे नुकसान आपका होगा। आपको तो मालूम। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को असली बात नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने, कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। अब नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था, जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहां पे लेना देना नहीं है, मैं यहां का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। जो यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो एक ही सिस्टम है। अब यहां पे फर्क है कि यहां पे उनको बैठा रखा है और उनका जो है प्रफुल्ल पटेल जी हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी जितना कंट्रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है मैं बताता हूं आपको। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, सारे के सारे जो संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकली, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकला। सबसे पहले सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलेगा, उसके बाद लोकतंत्र, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकले। कॉन्स्टिट्यूशन नींव थी, बीज था, और उसमें से ये चीजें निकली। अब ये लोग चाहते हैं कि इसको नष्ट किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनको खत्म किया जाए, और आरएसएस और बीजेपी के राजाओं को देश के राजा बना दिया जाए। अब देखिए, आप मैं आपको बताता हूं, देखो, आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो। हिंदुस्तान की जो शिक्षा का सिस्टम है उसमें आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो। सारे के सारे आरएसएस के आदमी हैं। उनको शिक्षा के बारे में कुछ नहीं मालूम। कर सारों को यूनिवर्सिटीज में सारे आरएसएस के राजा बैठा दिए। तो यह काम किया जा रहा है
और इससे नुकसान आपका होगा। आपको तो मालूम है, आपको तो शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया ये प्रफुल्ल पटेल जो राजा बैठा है, जो यहां पे पहले 70 साल 80 साल पहले जो होता था आज हो रहा है। अगर मैं ये देश को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये प्रफुल्ल पटेल इन्होंने यहां बैठा रखे, बाकी देश में भी ये यही करने जा रहे हैं। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे हैं कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को असली बात नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने, कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। अब नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था, जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहां पे लेना देना नहीं है, मैं यहां का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। जो यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं, वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो एक ही सिस्टम है। अब यहां पे फर्क है कि यहां पे उनको बैठा रखा है, और उनका जो है प्रफुल्ल पटेल जी हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी जितना कंट्रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है मैं बताता हूं आपको, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, सारे के सारे जो संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकली, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकला। सबसे पहले सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलेगा, उसके बाद लोकतंत्र, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकले। कॉन्स्टिट्यूशन नींव थी, बीज था, और उसमें से ये चीजें निकली। अब ये लोग चाहते हैं कि इसको नष्ट किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनको खत्म किया जाए, और आरएसएस और बीजेपी के राजाओं को देश के राजा बना दिया जाए। अब देखिए, आप मैं आपको बताता हूं, देखो, आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो। हिंदुस्तान की जो शिक्षा का सिस्टम है उसमें आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो, सारे के सारे आरएसएस के आदमी हैं, उनको शिक्षा के बारे में कुछ नहीं मालूम। कर सारों को यूनिवर्सिटीज में सारे आरएसएस के राजा बैठा दिए। तो यह काम किया जा रहा है, और इससे नुकसान आपका होगा। आपको तो मालूम है, आपको तो शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया ये प्रफुल्ल पटेल जो राजा बैठा है, जो यहां पे पहले 70 साल 80 साल पहले जो होता था आज हो रहा है।
अगर मैं ये देश को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये प्रफुल्ल पटेल इन्होंने यहां बैठा रखे, बाकी देश में भी ये यही करने जा रहे हैं। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। अब नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था, जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहां पे लेना देना नहीं है, मैं यहां का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। जो यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल जी कर रहे हैं वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो एक ही सिस्टम है। अब यहां पे फर्क है कि यहां पे उनको बैठा रखा है और उनका जो है प्रफुल्ल पटेल जी हैं, उनका नरेंद्र मोदी जी जितना कंट्रोल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है मैं बताता हूं आपको, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, सारे के सारे जो संस्थाएं हैं, हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से निकली, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकला। सबसे पहले सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलेगा, उसके बाद लोकतंत्र, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकले। कॉन्स्टिट्यूशन नींव थी, बीज था, और उसमें से ये चीजें निकली। अब ये लोग चाहते हैं कि इसको नष्ट किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनको खत्म किया जाए, और आरएसएस और बीजेपी के राजाओं को देश के राजा बना दिया जाए। अब देखिए, आप मैं आपको बताता हूं, देखो, आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो। हिंदुस्तान की जो शिक्षा का सिस्टम है उसमें आप वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालो, सारे के सारे आरएसएस के आदमी हैं, उनको शिक्षा के बारे में कुछ नहीं मालूम। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को,
गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। अब नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस क्या चाहते हैं कि जैसे पहले राज हुआ करता था, जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहां पे लेना देना नहीं है, मैं यहां का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं। देखिए पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे हैं कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है। संविधान ने करोड़ों लोगों को आरक्षण दिया। देखिए पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे हैं कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। सबसे पहले संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। संविधान आपको वोट देता है, लोकतंत्र देता है।